अस्सलाम वालेकुम। ईद से एक दिन पहले, होपफुली एक दिन पहले, एक दिन और का भी रोज़ा हो सकता है। वैसे गर्मियाँ काफ़ी हो गई हैं तो होपिंग के आखिरी रोज़ा और तमाम दोस्तों को पेश की ईद मुबारक। टॉकिंग बुक्स के सेगमेंट में आज इतवार का दिन है तो जो किताबें मैंने उठाई हैं वो आपसे डिस्कस करना चाह रहा था। एक किताब जो खैर उठाई तो नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी पहले से पढ़ी हुई थी, मगर जो मेरी पसंदीदा महीने की मुनासबत से पसंदीदा कुरान पाक की ट्रांसलेशन है, अहमद अली की कंटेम्प्रेरी ट्रांसलेशन आम फहम ज़ुबान के अंदर जो की हुई है, वो मैं पहले भी रिकमेंड कर चुका हुआ हूँ। पुरानी किताबों वाला बंदा, उसका मैंने डिटेल्स यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगा। वो ही वांटेड टू, उसके पास एक एक्स्ट्रा कॉपी आई थी और मेरे पास चूँकि मल्टीपल कॉपीज़ ऑलरेडी पड़ी हुई हैं तो इसलिए आई वाज सेइंग कि आपके लिए कोई अगर दोस्त उठाना चाहे तो उसका हदिया मेरे ख्याल में 1200 रुपये कर रहा था। आई थॉट इट वाज अ बिट एक्सपेंसिव टू गेट अनदर कॉपी, बट ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल जब इस्लाम की क्लास हमने पढ़ी थी वहाँ पे, तो वहाँ पे प्रोफेसर ने ये रखी हुई थी। और अहमद अली वाज अ लिटरेरी पर्सन। Professor Ahmad Ali was born in Delhi in 1908 in a family direct descendants of Sheikh Abdul Qadir Jilani and came to be recognized as an outstanding man of letters in South Asia, a pioneer of the modern Urdu short story. He taught leading Indian universities and was visiting professor in China before the revolution and in Fulbright visiting professor in the US. आई थिंक अहमद अली वही साहब हैं जिन्होंने अंगारे मॉडर्न शॉर्ट स्टोरीज़ के अंदर वन ऑफ द लीडिंग किताबें, जो सबसे पहली मॉडर्न शॉर्ट स्टोरीज़ की का मजमूआ था और लोगों के साथ मिल के लिखा था. He had to move to Pakistan after the Indian subcontinent was divided and joined the Pakistan Foreign Service, establishing embassies in China and Morocco for their new country. Ahmad Ali published many works of fiction and non-fiction, including the widely acclaimed translation of Urdu poetry, The Golden Tradition, Columbia और Oxford में बहुत अच्छी collection है. He also translated from Indonesian, Persian and Chinese. His most famous novel, Twilight in Delhi, is considered a classic and has been published in French, Spanish, Portuguese and Urdu. अंग्रेजी में था. As a novelist, poet, short story writer, critic, translator, diplomat and scholar, Ahmad Ali's illustrious career spanned the better part of the century. He died in Karachi in 1994. So translation for example आपके सामने पहले भी इसकी पढ़ी हुई है. एक आपके सामने फॉर एग्जांपल गिव यू टेस्ट. द प्रोलॉग इस सूरह फातिहा के बारे में लिखते हैं. In the name of Allah, the most benevolent, ever merciful. Allah, all praise be to Allah, Lord of all the worlds, most beneficent, ever merciful, King of the day of judgment. You alone we worship, and to you alone turn for help. Guide us, O Lord, to the path that is straight, the path of those you have blessed, not of those who have earned your anger, nor those who have gone astray. तो अंग्रेज़ी में आम फहम ज़ुबान के अंदर दाउ शाल्ट और वो उस अंदाज़ के अंदर जो पुरानी ओल्ड के अंदर मोहम्मद पिकटाल और आई थिंक अब्दुल्ला यूसुफ अली का भी शायद इससे मिलता जुलता ही पुराना स्टाइल है. तो उसके अंदर फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक और सूरह नास का लिखते हैं. In the name of Allah, most benevolent, ever merciful, say, I seek refuge from the Lord of men, the King of men, the God of men, from the evil of him who breathes temptations into the mind of men, who suggests evil thoughts to the hearts of men, from among the jinns and men. आखिरी jinns and men सूरह और सूरह काफरून. Kul Kafirun, say, O you unbelievers, I do not worship what you worship, nor do you worship who I worship, nor will I worship what you worship, nor will you worship who I worship. To you your way, to me my way. Lakum deenukum waliya deen. सही. हेल्प सूरत नसर का इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. When the help of God arrives and victory, and you see men enter God's discipline horde by horde, then glorify your Lord and seek His forgiveness. Verily He is relenting. So translation अगर आपने देखनी है तो once again I will add details
इनकी यहाँ पे। इसके साथ साथ आज जो किताबें उठाई थी वहाँ पे 100 रुपए की थद्दी के अंदर से मुझे इंजील मुक़द्दस और ज़बूर और इमसाल, ये इसको कहते हैं साम्स, और इंजील आई बिलीव साम्स होती है, और तौरात इंजील ज़बूर, और ज़बूर इज़ द गॉस्पल्स। उसकी 100 रुपए की थद्दी के अंदर वहाँ पे पड़ी हुई थी, तो आई पिक्ड वन अप। उर्दू के अंदर मैंने कहा बाइबल, इवन दो आई हैव गॉन थ्रू इट, का सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ न्यू टेस्टामेंट एंड ओल्ड टेस्टामेंट एज वेल, मैं वो ये भी उसी क्लास के अंदर हमें पढ़ाई थी, मगर उर्दू के अंदर मैंने कम, उर्दू के अंदर पहली दफ़ा पढ़ रहा हूँ। तो ये लिखा हुआ है मत्ती की इंजील, मैथ्यू की गॉस्पल जो है उसके अंदर लिखा हुआ है, ये न्यू टेस्टामेंट है। इसके साथ साथ मरकस वुड बी मैथ्यू, मार्कस तो नहीं, आई थिंक द गॉस्पल ऑफ मैथ्यू, द गॉस्पल ऑफ लूक, and then the Gospel of Yohanna, I think John, और Amal, Romeo, the Romans, ग्रंथियाँ, I can't recall कौन सा था, सीओं के नाम, पौलुस का ख़त, यूहन्ना का, जॉन का पहला आम ख़त वगैरह, वो सारे के सारे, और अमसाल के साथ बीच में लिखा हुआ है। इंटरेस्टिंगली इसके अंदर ओल्ड टेस्टामेंट नहीं मौजूद, तौरा जिसको कहते हैं, जेनेसिस वगैरह, बट ये यहाँ पे अवेलेबल, न्यू टेस्टामेंट अवेलेबल था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में फॉर एग्ज़ाम्पल, यीशु तालीम देता है और शिफा देता है, और वो उनके साथ उतर कर हमवार जगह पर खड़ा हुआ, और उनके शागिर्दों की बड़ी जमात और लोगों की बड़ी भीड़ वहाँ थी, जो सारे यहूद और यरूशलेम और सोर और सैदा के बहरी किनारे से उसके सुनने और अपनी बीमारियों से शिफा पाने के लिए उसके पास आई थी, और जो नापाक रूहों से दुख पाते थे वो अच्छे किए गए, और सब लोग उसे छूने की कोशिश करते थे क्योंकि कुव्वत उससे निकलती थी, सबको शिफा बख्शती थी। He would heal people। रयाकारी के ख़िलाफ़ तंबी। इतने में जब हज़ारों आदमियों की भीड़ लग गई, यहाँ तक कि एक दूसरे पर गिरा पड़ता था, तो उसने सबसे पहले अपने शागिर्दों से ये कहना शुरू किया कि उस ख़मीर से होशियार रहना जो फरीसियों की रियाकारी है, क्योंकि वो कोई चीज़ ढकी नहीं जो खोली ना जाएगी, और ना कोई चीज़ छुपी है जो जानी ना जाएगी। इसलिए जो कुछ तुमने अंधेरे में कहा है वो उजाले में सुना जाएगा, और जो कुछ तुमने कोठरियों के अंदर कान में कहा है, कोठों पर उसकी मुनादी की जाएगी। सो झूठ बोलना, कुसर कुसर करना वगैरह, वो आपको इट्स अ मॉरल कोड इंडीड। किन से डरना चाहिए? मगर तुम दोस्तों में कहता हूँ कि उनसे ना डरो जो बदन को कत्ल करते हैं और उसके बाद और कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मैं तुम्हें चिताता हूँ कि किस से डरना चाहिए। उससे डरो जिसको इख्तियार है कि कत्ल करने के बाद जहन्नुम में डाले। हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ कि उसी से डरो। क्या 2 पैसे की 5 चिड़ियाँ नहीं बिकती, तो भी खुदा के हुजूर उनमें एक भी फरामोश नहीं होती, बल्कि तुम्हारे सर के बाल भी गिने हुए हैं। डरो मत, तुम्हारी कदर तो बहुत सी चिड़ियों से ज़्यादा है। सो वहीं वैसे इंडीड डीप, और ये करके यू कैन ओनली डाई वंस इन दिस पर्टिकुलर लाइफ। शेरों की तरह या अच्छे अंदाज के अंदर मॉरल लाइफ वगैरह आप जिएँ, मगर उस बंदे से डरें जो कि आपकी आखिरत भी और आपको वैसे भी ख़राब करता है। सो आई मीन महीने की मुनासबत से वहाँ पे पढ़ी हुई थी, तो आई पिक दिस अप एज वेल। अनदर बुक दैट आई हैव रिलीजन वगैरह, रमज़ान के अंदर मैंने थोड़ा बहुत पढ़ने की कोशिश की है, कुरान पाक भी और ये भी ट्रांसलेशन के साथ। तो एक किताब जो कि इसके साथ अपना दिमाग चलाने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, रोज़ों में जहन नहीं चलता तो उसके साथ आई ट्राई टू डू स्टैमिना बढ़ाने के लिए चेस ओपनिंग की। फॉर एग्जांपल चेस के ऊपर चंद मेरी पसंदीदा किताबें, वन ऑफ माई फेवरेट गेम्स। और एज यू कैन सी ये ऐसी चीज़ है जिसके अंदर हर
इट इज़ सच अ रिच गेम कि इसके अंदर मुख्तलिफ गेम्स, मुख्तलिफ ओपनिंग्स वगैरह के बारे में मैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ, प्रॉब्ली बिकॉज आई एम लेज़ी, एज रोय लोपेज। इब्तदा के अंदर उसके बारे में उसकी क्या वेरिएशंस हैं, ये रोय लोपेज के बीच में गेम्स वगैरह मुख्तलिफ नौइयत की उसके अंदर क्या वेरिएशंस आप कर सकते हैं। स्टाइनिट्स का जो डिफेंस था उसके अगेंस्ट विंग वेरिएशन, अगर विंग से अटैक करे, बर्ड्स डिफेंस, इस तरीके से। सो इट्स गुड। चेस सेट ले के सामने रख के आई फाइंड इट वेरी रिलैक्सिंग। एक और किताब जो कि दराज से आपको मिल जाती है, आप ऑनलाइन आर्ग्यू कर सकते हैं, कराची से ही आपको एक दिन के अंदर भेज देते हैं, सीक्रेट्स ऑफ मॉडर्न चेस स्ट्रैटेजी एडवांसेस बाय सिंग्स निम्सोविच। जॉन वाटसन ने लिखी हुई अच्छी छपी हुई किताब, और आई थिंक लेस दैन 1000 की थी। और भी किताबें वगैरह इनकी, चेस ओपनिंग वर्कबुक और ये मुख्तलिफ यहाँ पर छपी हुई कराची से रीप्रिंट। और स्पीकिंग ऑफ रीप्रिंट्स फ्रॉम कराची, अनदर बुक विच आई हेवली रिकमेंड, हाउ टू रीड अ बुक, मॉर्टिमर जे एडलर और चार्ल्स वन डॉरन, कोलंबिया का प्रोफेसर चार्ल्स वन डॉरन था, वो लेजेंडरी प्रोफेसर वगैरह। उसने कि मुख्तलिफ नौइयत की किताबों को तह में अगर आपने पढ़ना है उसके बारे में, साइंस या मैथ्स की अगर किताब पढ़नी है उसको कैसे पढ़ना है, अगर आपने लिटरेचर पढ़ना है वो कैसे पढ़ना है, पॉलिटिकल पढ़नी है, फ़िलासफ़ी पढ़नी है, ऑथर का मैसेज कैसे समझना है, तो अच्छी तरीके से तह में जाके दिस बुक रियली ओपन माई आई, सो आई डेफिनेटली रिकमेंड पिकिंग इट अप। आज किताबें, ये तो खैर पुरानी थी, आज जो किताबें पढ़ी 100 रुपए की थद्दी के अंदर, पंक बैंड्स के अंदर से सेक्स पिस्टल्स के साथ, रमोन्स के साथ, दिस वाज प्रॉब्ली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बैंड अराउंड द क्लैश, उनकी के बारे में किताब है। लिखी किसने हुई है, कि उनकी अपनी लिखी हुई। द क्लैश के बारे में ये था कि इट वाज अ पॉलिटिकल बैंड। सेक्स पिस्टल्स तो वैसे मोर डिस्ट्रक्टिव वगैरह, वो भी कभी थोड़ा बहुत पॉलिटिकल कंटेंट था। रमोन्स वाज ऑल अबाउट फन फन फन। बट क्लैश के बारे में अटलांटिक बुक्स ने ये सारी लिखी हुई है। और व्हाट इट सीम्स टू बी ए बायोग्राफी, तस्वीरें वगैरह भी अच्छी हैं, और मोस्टली इंटरव्यूज़ जो स्ट्रमर के और उसको क्या कहते हैं, स्टीव जोन्स, पॉल सिमनन, टॉपर हिडन, उनकी, अगर आपने कभी द क्लैश को नहीं सुना तो यू शुड चेक दम आउट। बेटर बैंड देन सेक्स पिस्टल्स आई थिंक। एक किताब जो कि पहले भी किसी बचपन में पढ़ी थी, 50 रुपए की थद्दी के अंदर थी, आई एम गोइंग टू बी मर्डर्ड, हर्क्यूल पोआरो का हुआ तो फिर एगाथा क्रिस्टी का प्रॉब्ली सबसे मशहूर फेमस नॉवल इज मर्डर ऑन ओरिएंट एक्सप्रेस। आई नॉट रेड इट, कोई इतना ज़्यादा डिटेल में मुझे काफ़ी इसका याद नहीं, इवन दो इसकी 2 फिल्में भी देखी हैं। सम ऑफ द बेस्ट मॉडर्न हूडानेट मूवीज़ अगर कोई बनी है, मर्डर ऑन द ओरिएंट एक्सप्रेस के ऊपर 2 अदद ऑलरेडी बन चुकी हुई हैं। एक तो वो जिसने हैमलेट के अंदर किया, केनेथ ब्राना ने नई वाली बनाई है, उसका हर्क्यूल पोआरो दूसरी साइड का 50 रुपए की थी, तो आई पिक्ड इट अप, इंजर पिंजर अलहदा करके। आई वांटेड टू रीड समथिंग लाइट। अनदर 50 रुपए की थद्दी के अंदर पेंट योर ओन पिक्चर्स, मुख्तलिफ पिगमेंट्स वगैरह, पेंटिंग के बारे में। तस्वीरें इसमें हैं नहीं, 50 की पड़ी हुई थी तो आई पिक्ड इट अप। लाइब्रेरी में ऐड करूँगा। 100 रुपए की थद्दी में, खैर 200 रुपए की। फिलिप पुलमन जो बच्चों के नॉवेल्स वगैरह लिखता है, उसने डिटेक्टिव स्टोरीज चूज़ की हैं जिसके अंदर आइजैक आज़िमोव, बेस्ट साइंस फिक्शन राइटर, आगाथा क्रिस्टी, एलरी क्वीन, डोरोथी सेयर्स, एंड्रू वाक्स, इटालो काबिनो, इनके मैंने नहीं पढ़े हुए, सो आई पिक्ड इट अप। अच्छा सस्ते के अंदर था, 100 रुपए की नहीं, ये 200 रुपए की थद्दी के अंदर था। स्टार्ट्स ऑफ कोर्स विद आर्थर कॉनन डॉयल, जिसने शेरलॉक होम्स की सारे लिखे हुए। स्पेक्ल्ड बैंड इज़ अ डिसेंट शॉर्ट स्टोरी, बट एलरी क्वीन और ये जो बाकी सारे के सारे हैं, छोटी छोटी 10-10 सफ़ों की है। आई थॉट आई पिक इट अप एंड गिव इट, शेयर इट विद मोमेंट, क्योंकि वो कम पड़ता है। एक और 200 रुपए की किताब जो पढ़ी, बल्कि 100 रुपए की पड़ी हुई, 200 रुपए की मिली, नासिर काज़मी का शहर गज़ल। आई हैव नेवर बीन एबल टू अप्रिशिएट नासिर काज़मी बिकॉज वो ट्रेडिशनल स्टाइल के अंदर लिखता है, बहुत ज़बरदस्त है, मगर वंस अगेन इस क्यों इतना ज़बरदस्त तस्वर किया जाता है आजकल के, और गज़लों को मैं, गज़ल राइटर्स को वैसे भी मैं नॉर्मली इतना ज़्यादा रेट नहीं करता, और इनकी इसका जो स्टाइल है, तो आई थॉट क्यों ना पढ़ें। नुसरतुल्लाह शाह वड़ाइच की 21 तारीख को रक्षा लगाया, दूसरा महीना फरवरी 2013। नुसरतुल्लाह वड़ाइच ने पता नहीं क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। चलें इसमें से कोई पढ़ के आपको गज़ल। तू जो इतना उदास है नासिर, तुझे क्या हो गया बता तो सही,
भरी दुनिया में जी नहीं लगता, जाने किस चीज़ की कमी है अभी। दिल की हवेली पर मुद्दत से खामोशी का कुफ्ल पड़ा है। ये ज़मीन किसके इंतज़ार में है, क्या ख़बर क्यों है ये नगर खामोश। तो डेफिनेटली नॉट अ गज़ल, या बेसिकली मुख्तलिफ़ अशार का ही कलेक्शन रखी हुई है। जब तेज़ हवा चलती है बस्ती में सर शाम बरसाती है इतराफ़ से पत्थर तेरी यादें। आई डोंट नो, आई थिंक ये रावी के अंदर लिखा हुआ है। गवर्नमेंट कॉलेज का जो मैगज़ीन है उसके अंदर से आर्टिकल लिखा हुआ है नासिर काज़मी के बारे में। इंतज़ार, ओह नाइस, इंतज़ार हुसैन ने लिखा हुआ, आफ्टर ऑल पीपल। थोड़ी देर को जी बहला था, फिर तेरी याद ने घेर लिया था। याद आई वो पहली बारिश जब तुझे इस नज़र से देखा था। मैं तेरे शहर से फिर गुज़रा था, पिछले सफ़र का ध्यान आया था। कितनी तेरी तेज़ उदास हवा थी, दिल का चिराग बुझा जाता था। तेरे शहर का स्टेशन भी मेरे दिल की तरह सूना था। रेल चली तो एक मुसाफिर मेरे सामने आ बैठा था। सचमुच तेरी जैसी आंखें, वैसा ही हंसता चेहरा था। चांदी का वही फूल गले में, माथे पर वही चांद खेला था। जाने कौन थी उसकी मंजिल, जाने क्यों तन्हा तन्हा था। कैसे कहूँ रुदाद सफ़र की आगे मोड़ जुदाई का था। तो पोएम लगती है। नासिर को लिखा हुआ है, नासिर काज़मी बज़ुबान उर्दू। बारिश का पहला कतरा, कच्ची मिट्टी की महक से मामूर अपने तजर्बे को नासिर ने जिस अमल के ज़रिए इस एक एहसास मुहैया की है वो याद का अमल है। तो नहीं, ये रोना ख्वाब है, नाइट मेरी। पहली बारिश में सफ़र के रास्ते में, इन गज़लों का जायज़ा सुहेल अहमद ने लिखा। पहली बारिश में सफ़र के रास्ते पर आबी मनाज़र, पत्थर के शहर, गूंगे टीले, नदियाँ, कश्तियाँ, पहाड़ियाँ, हरे जंगल, सूने स्टेशन, प्यासी। बिकॉज आई वॉज सेड कि स्टेशन कहाँ पे, अगर गज़ल थी, गज़ल तो खैर डेफिनेटली नहीं थी, अगर पोइम थी तो फिर ठीक है, मंजूर उसके अंदर स्टेशन की भी कभी जिक्र। और आंगन नज़र आते हैं और इस तजर्बे की मुख्तलिफ़ कड़ियों को मरबूत करते हैं। फ़ितरत इस पूरे सफ़र में हर जगह शरीक है, बल्कि वो इंसानी ताल्लुकात के लिए तनाजुर का काम करती है। कोई लंबी पोएम लगती है, लॉन्ग पोएम। खैर एनीवेज, नासिर काज़मी की किताब पकड़ी। हम सॉरी, आज टाइम काफ़ी ज़्यादा लगा रहा हूँ, बिट स्लो। एक और किताब, फैज़ अहमद फैज़ के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा है, और ये वहाँ पे पढ़ी हुई 200 की थद्दी में थी, तो अंग्रेज़ी में भी देख लिया जाए, बिकॉज इट सीन वैनगार्ड की किताबें अच्छी होती हैं, और इमदाद हुसैन की लिखी हुई इंट्रोडक्शन टू द पोइट्री ऑफ फैज़ अहमद फैज़। और द इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दिस इज़, वैनगार्ड की सारी किताबें वैसे अमूमन मयारी होती हैं। एलिस फैज़ ने लिखा हुआ है, और मुख्तलिफ स्पीच ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ द लेनिन प्राइज़ की फैज़ अहमद फैज़ का अपना है। नक्श फरियादी 114, फैज़ ऑन फैज़, फॉरवर्ड ऑन जिंदा नामा सैयद सज्जाद ज़हीर ने जो लिखा हुआ है। स्टोरी ऑफ प्रिजन हाउस, मेजर रिटायर्ड मोहम्मद इसहाक ने। दस्ते सबा का, पंजाबी पोएम्स वगैरह, उनके बारे में सारे का सारा इट्स गुड। अब अनफॉर्चुनेटली सारी की सारी जो पोएम्स लिखी हुई हैं वो इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ लिखी हुई हैं। द टू लव्स, द मेमोरी स्टिल फ्लैश, ओ रोज फेस्ड वाइन बेरर। अंग्रेजी में अजीब लगता है वो रोज। Dark curses of countless ages, savagely woven in the silken satin and gold lace, human bodies sold in street and marketplace, besmeared in dust and bathed in blood. अच्छा, ये लिखे, sold my house, I sold my soul. सो आई डेफिनेटली रिकमेंड। 200 की थद्दी के अंदर ये उठाई है। एक किताब अभी रिसेंटली मैंने अपने नेफ्यू के साथ, मोमेंट तो देखी हुई थी, आई एम रीडिस्कवरिंग उनके साथ, उनको बिठा के स्टार वॉर्स, तो उसके लिए किताब उठाई है। 50 रुपए की थद्दी में थी, क्वीन ऑफ द एम्पायर, एक छोटा नावल है। बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ता है, काफ़ी मोटी मोटी एंड के लगी मेरा यार बीच में अहमद को, तो उसके लिए आई पिक दिस अप। होपफुली he'll enjoy this, because Star Wars और Star Trek के novels की भी यूनिवर्स बहुत ज़बरदस्त है, इंटरेस्टिंग। एक जो 100 रुपए की मुझे मिली है, वर्ल्ड्स बेस्ट क्रिकेट जोक्स। आजकल पाकिस्तान टीम ऐसी जोक बनी हुई है,
लेकिन उस जोक से तकलीफ बड़ी होती है। तो चलो क्रिकेट के बारे में कोई। फर्स्ट वाइफ, हाउ इज़ योर हस्बैंड टुडे? सेकंड वाइफ, हिज क्रिकेट बैट इज गिविंग हिम अ लॉट ऑफ पेन। फर्स्ट वाइफ, हाउ कैन द क्रिकेट बैट गिव हिम पेन? सेकंड वाइफ, आई हिट हिम ओवर द हेड विद इट। और ये करके और ले टुकड़ा टुकड़ा ऑलरेडी होने लगा, इसको भी मेरे ख्याल में टेप लगवा के जुड़वानी पड़े। अननोन क्या The first time you face up to a googly, you're going to be in trouble if you have never faced one before. Of course, पहली दफ़ा हो रहा तो यही होगा. He had a bad day in the field, dropping 6 catches, and now as he sat huddled in the dressing room, he could feel a cold coming on. I think I've caught a cold, he muttered. Thank goodness you're able to catch something, grunted the captain. पाकिस्तान वैसे तो न्यूजीलैंड की तो न्यूजीलैंड भी काफ़ी कारी. शेख, it is said he has 80 maidens. Cricketer another 5 and he can get a new ball. तो नॉन शरीफ महमूद टेड के अंदर जाके थोड़ा सा ऑल नहीं, बल्कि पेट में तो नहीं लगा, शायद थोड़ा सा ऑल लो लगा. The farmer swung at the ball, missed it, and it thudded into his box. As he lay doubled up on the ground, the friendly wicket-keeper patted him on the shoulder and said, "Look on the bright side, old chap. That's increased the size of your farm. You've got a couple more acres." Flat कर दिया. और ये the annual cricket dance was going well, and George had coaxed Joan into the changing room of the pavilion. "Oh no, George, you mustn't. Mummy wouldn't like it." George, mummy is not going to get it. खैर कोई इतने ख़ास अच्छे नहीं हो. खैर मैं पढ़ने में भी काफ़ी. The devil proposed a cricket match between heaven and hell. Saint Peter smiled. It wouldn't be fair, for we have all the cricketers. Pointed out the devil, we have all the umpires. हाँ, umpire जहन्नुम में जाते हैं. ये अच्छा लतीफ़ है क्योंकि सारे umpire जहन्नुम के अंदर है. जितने मर्जी प्लेयर्स एक्चुअली वहाँ से आप उठा के लिए. एक किताब जो कि उठाई है, मेरा शोल्डर काफ़ी टेनिस वगैरह हो गया. आई थिंक आई नीड टू स्टार्ट स्ट्रेंथनिंग. 10 मिनट वर्कआउट्स की किताब 100-200 रुपए के अंदर. ये है स्ट्रेचिंग अपने बुढ़ापे में, और ख़ासतौर पे वेट्स के साथ, लाइट वेट्स के साथ एक्सरसाइज करना बैक और शोल्डर का. मेरा शोल्डर और बाजू बहुत ख़राब है, उसके लिए किताब उठाई है. 500 रुपए की एक और किताब जो कि मुझे मिली, पहले भी पढ़ी हुई थी बट इट इज़ एसेंशियल मोमेंट वगैरह को दी हुई, बट दफ्तर के लिए उठाई है लाइट रीडिंग के लिए. हांस क्रिश्चियन एंडरसन की तमाम कलेक्शन ऑफ ऑल ऑफ हिज फेरी टेल्स. लिटिल मर्मेड इसकी फॉर एग्जांपल है. आई हैव सीन लिटिल मर्मेड का जो बनी हुई है स्टैचू, डेनमार्क में था, कांट रिमेंबर, कोपेनहेगन में था आई थिंक, और बाद में फिर किसी ने उसका सर भी तोड़ दिया था, काट दिया था. इसकी मशहूर द पिग्स. सबसे मशहूर कौन सी हैं? हाँ, हांस के वो ब्रदर्स ग्रिम्स की तो आइस मेडन हाँ मशहूर है. द स्नो क्वीन, द नाइटिंगेल. हाँ, ज़्यादातर मैंने वैसे इनकी नहीं पढ़ी हुई. इसकी सिल्वर शिलिंग. लेकिन तस्वीरें जो हैं कितनी ज़बरदस्त बीच में बना के दी हुई हैं. तो द टोड, आई डोंट थिंक आई हैव रेड मोस्ट ऑफ दीज शॉर्ट स्टोरीज, सो दैट्स व्हाई आई पिक्ड इट अप. हमारे दोस्त हैं तारिक कमाल काजी साहब, वो कहा करते हैं कि बच्चों का अगर आप अदब दोबारा अपनी जवानी में या अपने बुढ़ापे के अंदर अगर आप पढ़ें तो यू गेट अ लॉट मोर मीनिंग आउट ऑफ इट. वेरी ट्रू. ईसॉप्स फेबल्स वो मुझे रिकमेंड करते रहते हैं. आई हैव रेड दैट. बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं, उसमें ज़्यादा आपको गहराई नज़र आती है. एक किताब जो कि बच्चों की पोइम्स की कलेक्शन है, मोमेंट के लिए थी महंगी, 2-3 दफ़ा सोच के लिए, बट आई एम ट्राइंग टू इनकरेज मोमेंट टू राइट पोइट्री, या कम से कम पढ़े, बी मोर क्रिएटिव रादर देन गेम्स खेलने के लिए हर वक्त. मून यू हैव यू मेट माई मदर, द कलेक्टेड पोएम्स ऑफ कार्ला कुस्किन. माँ इसकी फौत हो गई थी अपने बुढ़ापे में. Isn't it queer that an air can hear? Isn't it queer that an air can hear? Internal rhymes तो छोटी छोटी हैं. These are my knees. My knees are bony places that bend when I am walking down the block or running races. छोटी छोटी 2-2 लाइन्स की. आई जस्ट वॉन्ट टू शो टू मोमेंट के द पॉसिबिलिटी ऑफ. मैं खुद काफ़ी लिखता हूँ पोइट्री. अगर आपने मेरी पोइम्स नहीं देखी, यू शुड चेक इट आउट qayyums.com के ऊपर /MacMAQ अगर आप लिखेंगे तो वहाँ पे वेबसाइट के ऊपर 2-4 हैं मेरे, हज़ारों की तादाद में मैंने लिखी हुई हैं. आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम बाय द वे.
When I went out to see the sun, there wasn't sun or anyone, but there was only sand and sea and lots of rain that fell on me. And where the rain and river met, the water got completely wet. आई थिंक बच्चों के सिंपल अंदाज के अंदर ये सारे का सारा लिख के लाहौर अमेरिकन मैंने को बताया था, लाहौर अमेरिकन स्कूल की लाइब्रेरी उन्होंने बेची है, वहाँ मार्केट के अंदर आई थी, तो उसके अंदर से ये दिस कॉस्ट मी एक्सपेंसिव, हार्ड कवर है तो कॉस्ट मी आई थिंक 600 रुपये की मिली है मुझे, बट इट्स वर्थ इट। एक किताब जो कि अगर आपने फिल्म लगान देखी है तो इस बंदे को तो आपने देखा ही होगा। उसने क्रिस एंगलैंड ने अपना एक वन ऑफ द विलन, मेन वाला विलन नहीं था, उसको लगान की उसने तस्वीरों के साथ, उसने फिल्म कैसे बनाई, आमिर खान के साथ इंडिया में उसका टाइम कैसे गुजरा, क्या है, उसकी कलेक्शन वगैरह बना के उसने यहाँ पे दिखाई हुई है। और आई थॉट आई रीड दिस। और ये जो ब्रिटिश 11 फ्रॉम लगान, उसने अपनी तस्वीर वगैरह भी लगाई हुई है, और मुख्तलिफ कैरेक्टर्स वगैरह जो एक्टर थे, कैप्टन रसल और ये सारे के सारे। सो आई check it out. वन ऑफ माई फेवरेट बुक्स, वन ऑफ माई फेवरेट मूवीज़ एज वेल लगान। क्रिकेट का भी शौक है, और वैसे भी यहाँ पे मैंने कराची का जिक्र पढ़ा था, पता नहीं किधर गया, अब इंडिया के बारे में लिखा, खैर पाकिस्तान का भी शायद विज़िट किया। I'm driving along, having just dropped John, my younger son, off at Wendy's, listening to the fifth test from South Africa on TalkSport Radio. It's still quite new, the cricket being on commercial station. It still seems odd hearing Jack Bannister's effortfully shoving the phrase "brought to you by Regus Office Systems" into the otherwise straightforward remarks. The test has been ruined by the weather. We are on the final day with South Africa still ploughing along in the first innings of Achak or Hansi Krani and Nasser Hussain to forfeit an innings each. This happens from time to time in county, but in test match, surely David Lloyd is getting quite indignant about his ideas. Annoyance brought to you by Regus Office System. अच्छे अंदाज में लिखता है यार, और this is more like a diary I think उसकी। और क्या लिखता है फिल्म के बारे में। Another day in the desert, picking up cricket shots, this time of the Indian team batting. Late in the day, Amin, who is playing Bagga, the mute, in the oddest bit of casting against type, since he's simply the most talkative chap I've ever met, has a bat in his hand. He's not much of a cricketer, but the script calls for a big straight six. Amin tries some practice swipes, which look okay. He taps the ground where he wants the ball, and Salim to step up and throw the ball from just off camera for him to hit. Of course, Salim can't get the ball in the right place, and Amin has 4 or 6 air shots. Nice. So I'll definitely be reading this. टॉयलेट के अंदर डेफिनेटली रखूँगा, जब जाऊँगा तो वहाँ पे बैठ के पढ़ूँगा। अच्छा, दो नॉर्मली जो द रीज़न आई गो देयर एज वेल एज कि कोई ना कोई मेरे लिए ग्राफिक नॉवेल्स, कॉमिक्स उठा के रखे होते हैं। पैरे कॉमिक, इट्स द स्टोरी ऑफ माइकल एल्बर्ट एंड पार्टिसिपेटरी इकोनॉमिक्स, उसकी है। क्योंकि मैंने तो सिर्फ इसलिए उठाई कि नोम चॉम्स्की द माई ग्रेटेस्ट फेवरेट इंटेलेक्चुअल जो है, उसने इसका इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। So Paranomics is a graphic novel about the system we live in, what's wrong with it, and how we might be able to change it for the better. Recent upsurge in popular protests around the world shows that people are not happy with the state of capitalism and desire an alternate that will work for 99%, not just for the 1%. Paracon Michael Albert's visionary system of participatory economics is one such alternative. पर ट्रंप आ गया, उसने सारा कुछ तबाह कर देना, उसको क्या कहा। ये एक और कॉमिक जो वहाँ पे पड़ी हुई थी, फिल्म के ऊपर बेस्ड है। फिल्म वाज वेरी अनयूजुअल, और जिस तरीके से फर्स्ट स्टार वॉर्स जो कि फोर्थ स्टार वॉर्स है, उससे पहले रोग वन एक स्टैंड अलोन जो स्टोरी बनाई हुई है, वेरी 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 इंटरेस्टिंग। ये जो सारे का सारा है, और उसकी कॉमिक के ऊपर पार्ट्स में रोग वन की जो कॉमिक है, आई थॉट फिल्म के ऊपर नहीं, फिल्म पे तो बेस्ड है। हाँ, ये आखिरी सीन उसका जो है, अगर आपने नहीं देखी तो स्पॉइलर। उसके बाद आई लाइक हाउ दे हुक्ड इट अप विद द स्टार्ट ऑफ एपिसोड 4 और होप, और ये सारे का सारा प्रिंसेस लेया का।
एंड में भी एक अलहदा भी शॉर्ट स्टोरी सी बनी हुई. सो ग्राफिक नावल आई पिक दिस अप एज वेल. सो दिस आई लाइक. आखिरी में आई इंटेंड टू गेट फिट आफ्टर ऑल ऑफ दिस एज वेल. और इसके बाद तो इलेक्शन शुरू हो जाना. आई वंडर व्हेन आई हैव द एनर्जी. बट अल्टीमेट ट्रेनिंग फॉर मार्शल आर्ट्स जो कि मैंने करनी. बट ये इनसाइड कुंग फू जो मैगज़ीन है उसका, इट्स वन ऑफ द बेस्ट मैगज़ीन्स में न्यूट्रिशन और मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में, और ख़ास तौर पे अपनी बॉडी को आप सेल्फ मसाज, आप टाई ची, सीक्रेट्स ऑफ हेल्थ का, हेल्थ एंड ब्यूटी, चलो ठीक है ब्यूटीफुल भी मैं होने लगा हूँ फिर इसका मतलब है, और मुख्तलिफ बैग के अपने आप को आप कैसे करते हैं. दैट्स प्रीटी मच व्हाई आई पिक दिस अप. सो ये देखें. दूसरा मैंने लुइस नाइजर की, मैंने मेरे नज़दीक बेहतरीन जो किताब मुझे पसंद आई है लॉ के बारे में, आई एवर कम अक्रॉस माई लाइफ इन कोर्ट, लुइस नाइजर की. उसका एक अलहदा वीडियो बना के अपलोड किया. डू चेक इट आउट. आई सॉरी इफ आई साउंडेड डिस्ट्रैक्टेड टुडे. घर जाके लो एनर्जी राइट नाउ. But I enjoy talking to you about books. I hope you enjoy these videos as well. अगर आपको हैं लाइक करें, ये थम्स अप वाला करें, बेल आइकन को करें, सब्सक्राइब करें, और बाकी जो सारी चीज़ें कहते हैं, और इसको ये चीज़ें फैलाएंगे तो मैं और वीडियोस वगैरह बनाता रहूँ ताकि गप्पें वगैरह लगती रहें. आई होप यू एंजॉयड. पेश की ईद मुबारक. उम्मीद है कल ईद होगी. ईद मुबारक. और अगर ईदी के तौर के ऊपर पकड़ के वीडियो को शेयर करें. थैंक यू.